So hello everyone. Hope you all are understood about the linear search and binary search. We have gone through the linear search and binary search. We have seen how to search the variable, how to search the data elements in the given set of or given set of group of elements. Okay. So today we are going to see about the sortings. So basically, what it means is sorting. So sorting is defined as it refers to the ordering of data in increasing or decreasing fashion. We all are know what they mean by sorting. Sorting is nothing but arrangement of data in a proper manner, either in ascending order or descending order. So basically what it means the ascending order and descending order. That means increasing or decreasing order का मतलब क्या होता है? So in case of a ascending order, we are going to arrange the data from lowest to highest. The very lowest data, very smallest data will be at the first position, and highest data or the larger data will be at the last location. सबसे छोटा डेटा आपका फर्स्ट लोकेशन पे आएगा, whereas लास्ट में आपका सबसे बड़ा डेटा आता है. ठीक है. Similarly, about the descending order, in case of a descending order, we are going to arrange the data elements in decreasing manner. That means on the first position we are having the highest value, and at the last location we are having the smallest value. That means ascending and descending order. So when we are going to arrange the data either in ascending or in descending order, we are having different types of algorithm related to sorting, or we can say we are having the different sorting techniques are available that we have to use while sorting the data. Basically, sorting is divided into two parts. The very first part is internal sorting, and the second one is external sorting. The first one is internal sorting, and the second one is external sorting. So internal sorting will be applied when the data having the low size. जब हमारे पास डेटा जो होगा एक कम अमाउंट ऑफ साइज में डेटा अगर है मेरे पास, so at that time we will use the internal sorting. Why the name is given as internal? Whenever you are going to apply the internal sorting techniques to sort any kind of data, at that time all the data will be available at your primary memory. You all are know, whenever we are going to execute any sort of program, any sort of data, whenever we are going to perform any operation on any sort of data, at that time we required all the data should be present at the main memory. So when the data size in a small volume, अगर आपका data size small volume में small size में अगर आपके पास data है, so at that time we will use the internal sorting techniques. So under the internal sorting techniques, we are having the bubble sort method, selection sort method, insertion sort method. After that, quick sort method, heap sort method. These are different sorting mechanisms. If you are talking about the external sorting techniques, so external sorting techniques are applicable for large amount of data. हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक कब अप्लाई करते हैं? जब डेटा हमारे पास बहुत बड़े साइज में होता है. एट दैट टाइम वी विल यूज द एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक्स. So under the external sorting techniques, we are having the tape-based sorting, disk-based sorting. Okay, so we will see one by one. Okay, so now today we are going to see one of the internal sorting techniques that is called as bubble sort. So bubble sort, it is one of the internal sorting techniques. That means bubble sort will be applied on a small size of data. So bubble sort is a simple sorting algorithm. This sorting algorithm is a comparison based algorithm in which each pair of adjacent element is compared and the element are swapped if they are not in order. It means that what? Suppose if the array elements are given to you, suppose the elements are given to you, and that you want to subvert all the elements into the array. So what actually the bubble sort will work? In bubble sort method, or why the name is given as bubble sort, here we are doing the bubbling. So bubbling means what? Suppose if the 10 elements are given to you, हमें 10 एलिमेंट दिए हुए हैं, हमने 10 एलिमेंट को अरे में स्टोर किया हुआ है.
So what the bubble sort will do, in bubble sort every element is compare with its adjacent element. हर एक एलिमेंट उसके एडजेसेंट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट उसके बाजू वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है डिपेंडिंग ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट करना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू exchange the value, you are going to exchange the value of these values stored at these two position. That means suppose 10 elements के लिए आपने array बनाया है, तो in the very first step में हम लोग क्या करेंगे, the step is also called as passes, pass 1 pass 2 pass 3 ऐसा भी बोलते हैं. So in very first pass what we will do, first element is compare with second. ठीक है, फर्स्ट को मैं सेकंड के साथ कंपेयर करूंगा. ठीक है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, ठीक है, पहला एलिमेंट आपका बड़ा है, दूसरा एलिमेंट आपका छोटा है. ठीक है, सो आपका छोटा एलिमेंट पहले आएगा, बड़ा एलिमेंट बाद में आएगा. दैट मीन्स इफ स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड सो यू हैव टू डू द स्वैपिंग. ये हो गया फर्स्ट कंपेयर विद सेकंड. नाउ सेकंड कंपेयर विद थर्ड. पहले हमने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर किया. नाउ सेकंड कंपेयर विद थर्ड. अगेन फिर सेम केस. If you want to swap the element, depends on ascending and descending order, you have to swap it. Then third compare with fourth, then fourth compare with fifth, then fifth compare with sixth. Likewise, you are going to swap the array elements. For example, एक simple example हम लोग देखते हैं. See. So we'll see the bubble sort example. Suppose the elements are given to you 5, 1, 4 to 8. सपोज आपके पास एक अरे है जिसमें आपने 5 एलिमेंट को स्टोर करके रखा हुआ है. ठीक है, सपोज 5 एलिमेंट्स आर गिवन टू यू. आपने एक अरे बनाया. ठीक है, 5 एलिमेंट्स के लिए आपने अरे बनाया जिसमें फर्स्ट लोकेशन पे 5 स्टोर्ड है. दिस इज अ फर्स्ट लोकेशन, दिस वन इज योर सेकेंड लोकेशन, दिस वन इज योर थर्ड लोकेशन, दिस इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ लोकेशन. नाउ सी, फर्स्ट लोकेशन पे 5 है, सेकंड पे 1 है, थर्ड पे 4 स्टोर किया, फोर्थ पे 2 स्टोर किया और 5 पे 8 स्टोर किया. रैंडम ऑर्डर में आपको नंबर मिले. अभी ये नंबर्स को आपको सॉर्ट आउट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द लोवेस्ट डेटा will be at the first position and highest data will be at the last position. So we are going to see the first phase. हम लोग स्टेप नंबर 1 फॉर्म करते हैं, पास 1 फर्स्ट स्टेप, और स्टेप नंबर 1 और पास नंबर 1. ठीक है, इन वेरी फर्स्ट स्टेप what we will do, this is your array. So in the first step what you are going to do, first element compare with the second element. that means आपको किसको किसको कंपेयर करना है, फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को. that means 5 कंपेयर with 1. in the very first step compare 5 with 1. अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर सेट करना है. दैट मीन्स हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है. सो कंपेयर 5 विथ 1. सो 5 इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स 1 5 के जगह जाना चाहिए और 5 1 के जगह जाना चाहिए. सो देखिए वी हैव टू स्वैप द वैल्यू. हमने ये दोनों को नंबर को कंपेयर किया. दोनों नंबर को कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चला द फर्स्ट नंबर इज लार्जर देन द सेकेंड वन. फर्स्ट नंबर आपका बड़ा है, सेकेंड नंबर आपका छोटा है. तो फर्स्ट आने सेकेंड नंबर वाला जो नंबर होगा पहले आएगा और जो 5 है वो आपका बाद में आ जाएगा. दैट मींस 1 की जगह 5 की जगह 1 चलेगा और 1 की जगह 5 आ गया. दैट मींस वी हैव टू स्वैप द एलिमेंट. व्हाट वी डिड, वी हैव टू कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर किया. ठीक है, हमें पता चला कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, सेकंड एलिमेंट छोटा है, तो हमने स्वैप कर दिया. 1 पहले चले गया, 5 सेकंड पोजीशन पे आ गया. ठीक है, नाउ अभी आपका फर्स्ट कंपेयर विद सेकंड हो गया था, अभी सेकंड कंपेयर विद थर्ड. दैट मींस अभी आपका कंपैरिजन किसका किसका होगा, सेकंड और थर्ड का होगा. दैट मींस पहले आपने फर्स्ट और सेकंड का किया, पहले आपने इसका और इसका कंपैरिजन किया, अभी आप सेकंड विद थर्ड. सो नाउ 5 विद 4 को कंपेयर करो. सो इफ यू आर कंपेयरिंग सेकंड एलिमेंट विद द थर्ड एलिमेंट, सेकंड विद थर्ड एलिमेंट को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आपको ये पता चलता है कि 5 बड़ा है 4 से. ठीक है, सो 4 आपको 5 के जगह चाहिए और 5 आपको 4 के जगह चाहिए. सो वी हैव टू स्वैप द एलिमेंट्स. अभी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 को 5 के जगह लेकर आना पड़ेगा और 5 को 4 की जगह लेकर जाना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे स्वैप हो गया, 4 पहले आ गया और 5 बाद में आ गया. ठीक है, नाउ इन द थर्ड स्टेप, थर्ड एलिमेंट कंपेयर विद द फोर्थ एलिमेंट. आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा,
थर्ड एलिमेंट जो होगा वो कंपेयर किसके साथ होगा, फोर्थ एलिमेंट के साथ। तो 5 कंपेयर विथ 2, ये 5 को मैं 2 के साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। इसके पहले हमने 5 और 4 को किया था। Now in the third step compare 5 with 2. So again 5 is greater than 2. So 2 हमें 5 की जगह चाहिए और 5 हमें 2 की जगह चाहिए. So 2 पहले आ गया और 5 बाद में आ गया, ठीक है. Likewise and finally we have to compare element 4 with 5, ठीक है. 4 को आप 5 के साथ कंपेयर करोगे. So फोर्थ लोकेशन पे एलिमेंट कौन सा है, 5 है. फिफ्थ लोकेशन पे एलिमेंट कौन सा है, 8 है, ठीक है. बट 5 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 8. 5 is already smaller than 8, so there is no change because 5 already छोटा है 8 से. स्वैप करने की जरूरत है क्या हमें, नहीं है, एज इट इज रहेगा. दैट मींस 14258, ये हमारे फर्स्ट पास का रिजल्ट आया 14258. यानी स्टेप नंबर 1 हमारा परफॉर्म हुआ. लेकिन जब स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हुआ तो उसमें इतनी सारी स्टेप, कितनी स्टेप थी, 1 2 3 4 5 स्टेप थे. गॉट द पॉइंट. नाउ अभी हमारे एलिमेंट सॉर्ट हुए क्या, नहीं हुए हैं, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ है. नाउ सेकंड पास. सो इन सेकंड पास व्हाट आर द एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या आए थे आपके फर्स्ट पास के, 1 4 2 5 8. सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द पास 1, जैसे ही आपका बबल सॉर्ट में पहला स्टेप कंप्लीट होता है, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आपका लास्ट लोकेशन का जो एलिमेंट आता है दैट वुड बी द हाईएस्ट एलिमेंट. देखिए आपको यहाँ पे 8 मिला है, तो 8 आपका अरे में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है. जैसे ही आपका अरे का पहला स्टेप कंप्लीट होता है, ठीक है, सो यू विल गेट द हाईएस्ट एलिमेंट एट द लास्ट लोकेशन. देखो आपको 8 मिल गया, कौन सी लोकेशन पे, फिफ्थ नंबर पे. नाउ वी आर नॉट कंपेयरिंग 8 विद एनीबॉडी, ठीक है. अभी 8 हमारा सॉर्टेड मैनर में आ चुका है, 8 का पोजीशन अभी कभी चेंज नहीं हो सकता, 8 फिफ्थ पे ही रहेगा. नाउ वी हैव टू अप्लाई द अगेन सॉर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है. अगेन हम लोग बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, ये यहाँ से 1 4 2 5 तक, यानी इतने पार्ट पे हम लोग फिर से क्या अप्लाई करेंगे, बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे. देखिए नाउ सेकेंड स्टेप में अभी हमारा जो 8 है ये ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में आ चुका है, ठीक है. 8 को फिर से सॉर्टिंग में लेने की जरूरत नहीं है. नाउ वी हैव टू सॉर्ट दिस 4 एलिमेंट. दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया आपका, देन दिस वन इज योर सेकंड एलिमेंट, दिस वन इज योर थर्ड एलिमेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ एलिमेंट, ठीक है. नाउ अगेन द सेम केस, कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट. सो 1 विद 4, 1 विद 4 अगर कंपेयर करते तो 1 ऑलरेडी छोटा है 4 से, सो देयर इज नो चेंज, ठीक है. चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा. नाउ अभी फर्स्ट कंपेयर विद सेकंड हुआ, नाउ सेकंड कंपेयर विद थर्ड, सेकंड कंपेयर विद थर्ड. सो फोर्थ विद 2, सो 4 बड़ा है 2 से, तो 2 को 4 की जगह लेकर आना होगा, 4 को 2 की जगह लेकर आना होगा. तो देखिए हमने स्वैप किया, 2 4 की जगह आ गया, 4 2 की जगह आ गया. नाउ थर्ड एलिमेंट विद द फोर्थ एलिमेंट, थर्ड विद फोर्थ, सो 4 विद 5, 4 विद 5 अगर करते हैं, ठीक है, 4 को अगर मैं 5 से कंपेयर करता हूं, सो अगेन देयर इज नो चेंज. यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है. दैट मीन्स 4 और 5 आपका एक ही जगह पे आएगा, ठीक है. दैट मीन्स आपका अभी सेकेंड केस में 5 इज द नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट, ठीक है, जो 8 के पहले आएगा, ठीक है. 8 से थोड़ा सा छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5 है. दैट मीन्स अभी आपका 5 और 8 सॉर्टेड मैनर में आ चुका है, ये 5 और 8 आपका सॉर्टेड में आ चुका है. सो अभी 5 और 8 को बार बार आपको सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्किप द एलिमेंट, ठीक है. नाउ अभी इसके बाद वी आर गोइंग टू परफॉर्म द थर्ड स्टेप. हम लोग थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे. जब थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे तो ये जो 5 और 8 है, ये जो दो एलिमेंट है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में आ चुके हैं. ये दो जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में आ चुके हैं, 5 एंड 8. इसको हम लोग को सॉर्टिंग में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू सॉर्ट 1 2 एंड 4. सो अभी फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 1 है, सेकंड पे क्या है, 2 है, थर्ड लोकेशन पे क्या है, 4 है, ठीक है. नाउ कंपेयर अगेन द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, 1 with 2. So there is no change. 1 is already smaller than 2. So there is no change. Okay. Now compare second location element with the third location element, that is 2 with 4. So there is again no change because 2 is already smaller than 4. ठीक है, so no change. So no change होने के बाद आपको ये वाला वैल्यू मिला. फाइनली अभी हमारे तीन वैल्यूज सॉर्टेड में आ चुके, 4 5 एंड 8. कितने वैल्यूज हमारे सॉर्टेड में आए, 3.
4, 5 and 8. Now in the fourth step, अभी तीसरा स्टेप हो गया, अभी इसके बाद फिर से फोर्थ स्टेप आएगा, ठीक है। आई हैवंट शोन ऑन द पीपीटी, ठीक है। फोर्थ स्टेप में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमें कितने नंबर को सॉर्ट आउट करना है, सिर्फ ये दो नंबर, क्योंकि 4 और 4, 5, 8 ऑलरेडी सॉर्टेड में हो चुके हैं। नाउ इतने इस पे हम लोग को सॉर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज 1 एंड द सेकंड एलिमेंट इज 2, सो कंपेयर फर्स्ट विद 2, ठीक है। फर्स्ट विद 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एज इट इज देयर इज नो चेंज, 1 ऑलरेडी स्मॉलर देन 2, सो फाइनली यू विल गेट दिस आउटपुट, ठीक है। स्टेप नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, थर्ड तक ही है। सो फोर्थ स्टेप भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म द फोर्थ नंबर स्टेप, ठीक है। सो फाइनली यू विल गेट द अरे इन द सॉर्टेड मैनर, यानी अरे का डेटा इस तरीके से आपका सॉर्टेड में हो जाएगा। सो वंस वी सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, वी कैन से इफ द एलिमेंट्स आर n, जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी आर हैविंग द 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स से तो कितनी स्टेप्स हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा एलिमेंट यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक, वी रिक्वायर्ड द n-1 स्टेप। n-1 स्टेप यानी क्या, सपोज आपके पास 5 एलिमेंट्स है तो आपको 4 स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी। सपोज इफ यू आर हैविंग द 100 डेटा एलिमेंट्स, यू हैव टू परफॉर्म 99 स्टेप्स। if you are having the 1000 data elements, so you have to perform the 999 steps. It means that if you are having the n data, यानी हमारे पास अगर n डेटा है तो मुझे स्टेप्स कितनी परफॉर्म करनी पड़ेगी, मुझे कितनी स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी, n-1 स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। सो you will ask this question in the Viva voice also. Anybody can ask you how many steps are required to sort the data element using bubble sort. So answer is you will require the n-1 step. n is nothing but a number of data elements. जितना डेटा है उससे एक एलिमेंट कम आपको स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो दिस इज एक्चुअली द बबल सॉर्ट टेक्निक। नाउ सो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अरे। So advantages and disadvantages of array की अगर बात, we can see what are the various advantages and disadvantages of the bubble sort method. Okay. So the very first advantage is this algorithm is very simple, very easy to understand. It will take a few line of code. Line of code is very easy. Program काफी इसका easy है. Number of lines, line of code very. That means we can say a very few number of lines we have to write. The data is stored in place, so there is little memory overhead, and once sorted, the data is in the memory ready for the processing. Okay. After that, the disadvantage of this bubble sort technique is it will apply on the small size of data. ठीक है, ये एक small size of data पे काम करता है. If we are having the large amount of data, so this particular algorithm is not more effective for the work. Okay. Amount of time is required to sort the data element using bubble sort is more as compared to the other algorithms. So these are the advantages and disadvantages of the algorithm. So now we will see the program. So we can see the program for the bubble sort method. So this is a program. Okay. So now see the we will see the program for the bubble sort method. So hash include stdio.h, conio.h, void main. These are the three common statements. After that, I have declared one array with the name is ARR. The name of the array is ARR with the size is 50. मैंने size इसका 50 करके रखा हुआ है, ठीक है। अब and I will ask the user for how many elements he want to apply the bubble sort method. After that, I have taken I and j variable because I am using the for loop. That's why I have taken I and j. After that, temp variable because we are doing the swapping, ठीक है। And dimension,
डायमेंशन और वी कैन से इंस्टेड ऑफ डायमेंशन यू कैन टेक अ साइज. वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया है. डायमेंशन इज यूज, आई हैव टू आस्क द डायमेंशन ऑफ द array. That means I have to ask the user how many number of elements he want to store into the array. Okay, so now CLR is here for clear for taking the output on the clear screen. After that, printf enter the dimension. I have printed one message, enter the dimension. Dimension means how many number of elements you want to store in the array. आपने साइज बाय डिफॉल्ट 50 रखा हुआ है, ठीक है, बट आउट ऑफ 50 आप कितने डेटा पे काम करना चाहते हो? कोई बोलेगा 5 पे करना है, कोई बोलेगा 10 पे करना है, कोई बोलेगा 40 पे करना है, कोई बोलेगा 50 पे करना है. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिमिटेशंस देके रखा हुआ है. यू कैन टेक एनी नंबर, आप अरे का साइज कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट स्कैनर परसेंट एड्रेस ऑफ डिम, डायमेंशन का वैल्यू यूजर से मांगा है. दैट मीन्स डायमेंशन का वैल्यू यूजर से मिलेगा. सपोज इफ आई प्रेस 5, अगर मैंने डायमेंशन का वैल्यू 5 दिया है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशन? डायमेंशन मींस 5, यानी आप 5 डेटा पे काम करना चाहते हैं. Suppose dimension value is 10, that means you want to apply the bubble sort on 10 elements. Suppose dimension value is 20, you want to apply the bubble sort on 20 elements. ठीक है, now enter the array elements. एक मैसेज प्रिंट कर दिया, enter the array elements. After that, अभी array के elements हमें यूजर से लेना है. अभी यूजर से एलिमेंट लेना है तो मैं, अगर सपोज मुझे 10 एलिमेंट पे काम करना है तो मैं स्कैनर 10 बार लिखते बैठूंगा क्या? नहीं, जस्ट आई हैव टू फॉर्म अ लूप. मैं एक लूप यूज करूंगा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन डायमेंशन i प्लस प्लस. ये लूप कब तक चलेगा? डायमेंशन तक. यानी अगर आपको 5 एलिमेंट पे काम करना है तो डायमेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5. तो ये लूप 5 बार चलेगा. अगर डायमेंशन का वैल्यू 10 होगा तो ये लूप 10 टाइम चलेगा. दैट मींस आप जो वैल्यू भेजोगे, जैसे आपने 10 कर दिया, तो आप कीबोर्ड से जो भी 10 वैल्यू भेजोगे वो 10 वैल्यू एप्रोप्रिएट अरे में जाकर स्टोर हो जाएगी. दैट मींस i इज इक्वल टू 1 होगा तो पहली वैल्यू ARR 1 पोजीशन में जाकर स्टोर हो जाएगी. i जब 2 हो जाएगा तो ARR सेकंड पोजीशन पे आपका सेकंड वैल्यू जाएगा. i 3 होगा तो थर्ड पोजीशन पे आपका थर्ड वैल्यू ARR ऑफ 3 में जाकर स्टोर हो जाएगा. फोर्थ, अगर i आपका 4 हो जाएगा तो ARR 4 पोजीशन पे आपका फोर्थ एलिमेंट स्टोर हो जाएगा. इस तरीके से आपको जितने नंबर पे काम करना है उतने एलिमेंट्स आपके एप्रोप्रिएट लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगे. ठीक है, now you can see, हमने अभी देखा जब स्टेप नंबर 1 तक, now we have to use these two for loop. ठीक है, आपने देखा अभी जब हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था. सो इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप नंबर 1 पे क्या हुआ था? फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर विद सेकंड, सेकंड विद थर्ड, थर्ड विद फोर्थ, फोर्थ विद फिफ्थ, फिफ्थ विद सिक्स्थ, ऐसा था. दैट मींस हम ये बोलेंगे कि स्टेप नंबर 1 है तो उसकी सब स्टेप भी आपने देखी है. नीचे देखो आपकी सब स्टेप्स थी. दैट मींस अगर आपका यहाँ पे पहला अगर है, दैट मींस यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 है या फिर पास नंबर 1 है, तो पहले पास में आपने क्या किया? फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर विद सेकंड, सेकंड विद थर्ड, थर्ड विद फोर्थ, फोर्थ विद फिफ्थ, फिफ्थ विद सिक्स्थ, ऐसे करते करते आप डायमेंशन तक पहुंचे. तो पहला स्टेप खत्म होने के बाद आपको लास्ट में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट मिलेगा. ठीक है, नाउ अभी सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा. फिर सेकंड स्टेप जब स्टार्ट होगा, सेकंड पास जब स्टार्ट होगा, तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1. फर्स्ट कंपेयर विद सेकंड, सेकंड कंपेयर विद थर्ड, थर्ड कंपेयर विद फोर्थ, लाइकवाइज. अगेन फिर सेकंड नंबर आपका सॉर्ट हो जाएगा. फिर थर्ड पास में अगेन सेम, फर्स्ट कंपेयर विद सेकंड, सेकंड विद थर्ड, थर्ड विद फोर्थ, फोर्थ विद फिफ्थ, लाइकवाइज. दैट मींस ये जो पहला वाला फॉर लूप लिखा हुआ है, ये जो पहला फॉर लूप लिखा हुआ है, दैट इज फॉर नंबर ऑफ स्टेप्स. यानी i इज इक्वल टू 1 होगा तो स्टेप नंबर 1, i 2 होगा तो स्टेप नंबर 2, i 3 होगा तो स्टेप नंबर 3, i 4 होगा तो स्टेप नंबर 4, लाइकवाइज. ठीक है, सो यहाँ पे आपने i इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन और डायमेंशन माइनस 1 भी दिया तो चलेगा. ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1. अगर 5 है डेटा तो आपको 4 स्टेप लगेगी, 10 है तो 9 स्टेप लगेगी. ठीक है, यहाँ पे माइनस डायमेंशन माइनस 1 तक चला है तो भी चलेगा. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट जब i इज इक्वल टू 1 रहेगा तो स्टेप नंबर 1 रहेगा तो आपकी सब स्टेप्स क्या क्या चलेगी. ठीक है, सो इसलिए ये नेक्स्ट फॉर लूप चला है. ये नेक्स्ट फॉर लूप कहां तक चलने वाला है? फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन माइनस i, बिकॉज इन एवरी स्टेप जब पहला स्टेप होगा तो आपको लास्ट में पहला एलिमेंट आपको हाईएस्ट मिलेगा. जब सेकंड स्टेप मिलेगा, सेकंड स्टेप आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके 2 एलिमेंट आपके सॉर्टेड में आ जाएंगे. जब थर्ड स्टेप रहेगा तो आपके 3 एलिमेंट सॉर्टेड में आएंगे. इसलिए माइनस i लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी डायमेंशन माइनस i, यानी आपकी सब स्टेप्स कितनी आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सो जैसे आपके पास 5 एलिमेंट है तो आपका जब पहला स्टेप आप परफॉर्म करोगे तो उसमें सब स्टेप कितनी रहेगी? 5 माइनस 1, 4 रहेगी. जब आपका सेकंड स्टेप रहेगा तो सेकंड स्टेप में आपको कितनी सब स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा? 5 माइनस i, यानी कितना है? 2 है. 5 माइनस 2, 3 एंड 3 स्टेप. फिर नेक्स्ट इसमें 2 स्टेप, फिर नेक्स्ट इसमें 1 स्टेप, इसलिए यहाँ पे डायमेंशन माइनस i लिखा हुआ है. ठीक है, सो पहला जो फॉर लूप चला है वो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए, और नंबर ऑफ ये नीचे वाला जो फॉर लूप चला है कि जब नीचे वाला जो सेकंड लूप चला है वो नंबर ऑफ सब स्टेप्स के लिए. आफ्टर दैट व्हेन j इज इक्वल्स टू 1,
j is less than equal to dimension, we have to check the condition whether j is less than dimension minus I. If the condition is true, then यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, that is a logic for swapping. If what we are doing in bubble sort, in the very first step we have to compare first element with the second element. So if ARR of j अगर 1 है, so a of that means ARR of 1 greater than ARR of j plus 1. So 1 plus 1 2. So first element will compare with the second element, and depending on ascending and descending order we are going to exchange the value. That means if the first value is greater than the second value, so we are going to swap the value. So this is the logic for swap. So temp is equal to ARR of j, ARR of j is equal to ARR of j plus 1, ARR of j plus 1 is equal to temp. So likewise we are going to swap the value again. सपोज इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर फर्स्ट वैल्यू आपका ग्रेटर नहीं है सेकंड वैल्यू से, तो इफ के अंदर जाएगा क्या हो, नहीं जाएगा. नाउ इट इज डायरेक्टली इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j बाय 1. नाउ पहले j 1 था, अभी j कितना हुआ, 2 हुआ. दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द वैल्यू second position value with the third position value. That means in the first step what we did, first compare with second. Now what we are going to do, compare second element second position value with the third position value. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ये ऐसा आपका प्रोसेस चलेगा टिल द एंड. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द elements of the sorted array. That means whatever after sorting the elements of array we are going to display. So for that we required one array, because we are not going to display the individual, we are not writing the individual printf statement for every value. So just we have to put the for loop for I is equal to 1, I less than dimension I plus plus, and that we are going to print the value of array. That means when I is equals to 1 तो array के फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, when I is 2 तो array के सेकंड पोजीशन का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा. लाइकवाइज वो आपके array के सारे पोजीशंस की वैल्यू डिस्प्ले करेगा. ओके, so this is the program for bubble sort. Hope you all understand this concept of bubble sort very well. Okay, so thank you one and all. Thank you.